Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2342-1050 and 2331-0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav and with me is my co-anchor Divya Tomar. बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम आपको अर्थ जगत से जुड़ी हुई सभी खबरों के बारे में बताएंगे। और क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार को हम अपने लिसनर्स के फोन लाइव लेते हैं, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464 पर। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। शरद, आपको मेरा नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार दिव्या, नमस्कार वैभव और सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। और पहले हेडलाइंस के साथ हैं हमारे को होस्ट वैभव जे श्रीवास्तव। We begin with the headlines. Benchmark domestic equity indices end week's first trading session on a muted note. Sensex rises marginally by 10 points. Nifty closes flat at 25,461. Prime Minister Narendra Modi says at BRICS, no country should weaponize critical minerals, technology and supply chains. And crude oil prices display mixed trend. Brent crude trading at $68.67 per barrel. हफ्ते के पहले दिन बेंचमार्क घरेलू इक्विटी इंडेक्स का कारोबारी सत्र बिना किसी खास बदलाव के सपाट रहा। सेंसेक्स 10 अंकों की मामूली बढ़त और निफ्टी 25,461 पर बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश को अपने स्वार्थ के लिए महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं का हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कच्चे तेल का मूल्य में मिश्रित ट्रेंड देखा गया। ब्रेंट क्रूड $68.67 प्रति बैरल रहा। और अब पहली खबर अर्थ जगत से। वैश्विक स्तर पर मिले जुले संकेतों के बीच बेंचमार्क घरेलू इक्विटी सूचकांक सप्ताह के पहले कारोबारी सत्र में नरम रुख के साथ बंद हुए। अमेरिकी व्यापार नीति पर बढ़ती अनिश्चितता के बीच निवेशकों के सतर्क रहने से दोनों सूचकांक पूरे सत्र के दौरान सीमित दायरे में रहे। बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 10 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 83,443 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 बिना किसी बदलाव के 25,461 पर बंद हुआ। Benchmark domestic equity indices ended the week's first trading session on a muted note amid mixed global cues. Both the indices remained range-bound throughout the session as investors stayed cautious amid growing uncertainty over U.S. trade policy. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex rose marginally by 10 points to close at 83,443. The National Stock Exchange Nifty 50 settled unchanged at 25,461. The broader market indices at the BSE closed slightly lower. The mid-cap index lost over 0.1% and the small-cap index declined over 0.3%. जी हाँ, बीएसई में व्यापक बाजार सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप सूचकांक में 0.1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.3% से अधिक की गिरावट आई। सेंसेक्स में 30 में से 18 कंपनियों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा गिरावट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 2.4% से अधिक, टेक महिंद्रा में 1.8% और अल्ट्राटेक सीमेंट में लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। सर्वाधिक लाभ में रहने वाले शेयरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर में 3%,
कोटक बैंक में 1% से अधिक और ट्रेंट में 0.9% से अधिक की बढ़त रही। In sectoral indices at the BSE, 14 out of 21 sectors ended down. In the top laggards, telecommunication dipped more than 1.2%, focused IT slipped over 0.7%, and commodities fell over 0.6%. Among the top gainers, FMCG surged 1.5%, utilities climbed 0.7%, and power as well as oil and gas both increased 0.31% each. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,364 companies declined, shares of 1,707 companies advanced, while shares of 190 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 61 companies hit their 52-week high, while 38 hit their 52-week low. And we are joined in by our first caller on this edition's Market Mantra. We have Ajay Kumar from Jharkhand. Ajay, welcome to the show. Please ask your question. Hello, Market Mantra team. Good evening to all. Good evening. Good evening. I have one question. See, regarding the shareholding pattern, those who have been owner of any company and holding huge amount of shares, how they are they are earning the money to run their day-to-day life. Definitely, they will not be selling the shares on daily basis, and also they are not getting the dividend, and they are getting paid as a salary, being working in a company. So whether they are keeping their money extra to run their family on daily basis because they have huge expenses. But I want to understand how they use the money openly to their daily life. Okay, Ajay, that seems to be a very, very interesting and intriguing question as to how do the owners of the companies, they make money. Well, I think you have partly answered the question yourself. All the owners who actively participate in the business, if they are actively the CEO or they are amongst the board of directors, well, as you rightly said, they do draw directors' remuneration and salaries. So when they do draw the salaries, they run from there. And we should not forget that if somebody is holding, let me take an example because we don't name companies here. Let's say somebody is holding 57% of the shares and the value of those shares are, let's say 500 crores. Somebody was joking with me, which is related to the question that Ajay has asked. I would like to inform Vaibhav and Divya also. So he asked me that he's holding his shares are more than 500 crores and he's not drawing any salary from the company. So when he has to buy and go and buy arar ki dal or chawal, what he does is he goes and sells a few of his shares. So jokes apart, yes, they do draw salaries, directors' remuneration, plus they do get dividends as well. So, and Ajay, we should not forget that normally traditional and I would say long-term owners of these companies are also deep pocketed as well. Sometimes this may not be their only company, this may not be their only business, and this may not be the only source of income. They may be having investments where they're getting interest, they may be having properties from where they may be getting rentals, they may have invested in some securities where they may be getting interest again. So I think for each person, for each owner, the answer to your question is that the story would be different. It may not be the same thing. Absolutely. और अब हमारे अगले कॉलर हैं आर के धवन दिल्ली से। जी सर जी नमस्कार। नमस्कार धवन साहब। सर दो सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि वर्ल्ड में जो तनाव रहा उसके कारण से गोल्ड में रेट बड़े हाई हो गए थे जी। अब कुछ कमी आने लगी है, तो इसमें कमी होने के कितने चांसेस हैं और कहाँ तक ये डाउन हो सकता है? यूक्रेन से कहते हैं कि तेल वगैरह आता था, उससे कई चीजें महंगी हुई, इससे तेल से कई आइटम बनती हैं। और दूसरा मेरा सवाल सूरज जी ये है कि आज से 30-32 साल पहले हमने देखा था कि जो शेयर मार्केट में भी घोटालेबाज होते हैं, इससे किन शेयर मार्केट के ऐसे लोगों से बचें जो घोटाला से हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे हमने नाम सुना था फर्स्ट हर्षद मेहता का नाम, इसके बारे में थोड़ा समझाइएगा। चलिए धवन साहब, बहुत अपने जागरूकता का सवाल पूछा है। मुझे लगता है सभी श्रोताओं के मतलब के दोनों सवाल हैं। गोल्ड प्राइसेस को धवन साहब प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन काम होता है। हमारे इकोनॉमिक्स के और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कहा जाता है कि कभी गोल्ड प्राइसेस को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। पर हाँ, गोल्ड प्राइसेस कुछ मापदंडों पर चलती है। जैसे जियो इकोनॉमिक, अभी जैसे टैरिफ्स की टेंशन चल रही है तो गोल्ड प्राइस हाई है। ऐसा माना जा रहा है कि यूएस डॉलर की वैल्यू गिर रही है। आपको पता होगा एक डॉलर इंडेक्स है जिसमें बास्केट ऑफ 6 करेंसी होती हैं, वो डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है। तो यूएस डॉलर बाकी करेंसीज के मुकाबले, यूरो, येन, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक के मुकाबले
50 साल की सबसे बड़ी गिरावट यूएस डॉलर ने देखी है। तो ऐसे में माना जा रहा है गोल्ड एक सुरक्षित निवेश है। ऐसे ही दो देशों के बीच में जब रॉकेट्स और मिसाइल्स चलती हैं तो भी गोल्ड बढ़ने लग जाता है, जिसको हम जियोपॉलिटिकल टेंशंस कहते हैं। ये जो आप करेक्शन, बहुत ज़रूरी एक मैं बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ये जो धवन साहब आप छोटी मोटी करेक्शंस देखते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, और शायद बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि गोल्ड में जो छोटी मूवमेंट होती है वो गोल्ड स्पेकुलेट भी किया जाता है। आपको पता होगा भारत में MCX है, अमेरिका में COMEX है, इन मार्केट्स में गोल्ड की ट्रेडिंग होती है। तो ये छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है, जैसे किसी ने बहुत खरीदा और बेच दिया तो आपको ये छोटे मोटे, अब $3300 अभी $10 में थोड़ी देर पहले देख रहा था, और कल तक $3340 था। तो छोटी मोटी मूवमेंट को नहीं देखना चाहिए, पर हाँ लंबे समय के लिए धवन साहब मैं गोल्ड को आज भी एक अच्छा निवेश मानता हूं। गोल्ड ने इसी साल 25% के करीब रिटर्न दिया है, तो मुझे लगता है लंबी अवधि के लिए आप गोल्ड को रखें, छोटी मोटी मूवमेंट्स को आप नागे। दूसरा आपने पूछा कि शेयर घोटाले को कैसे पकड़ा जाए। बहुत कठिन काम है, घोटाला जब हो जाता है तब सामने आता है। तो मैं आपको कुछ संकेत दे देता हूं। अगर आपको लगे किसी शेयर की प्राइस एकदम से बहुत बढ़ने लगी है, या किसी ग्रुप ऑफ शेयर्स की प्राइस अचानक एकदम से बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके से बढ़ रही है, तो वहाँ कहीं अंग्रेजी में बोलते हैं यू कैन स्मेल अ रैट, कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। हालांकि नहीं भी हो सकती है, पर इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अच्छी कंपनियों में, ब्लू चिप कंपनीज में, और छांट के अच्छी, जिसकी बैलेंस शीट अच्छी है उसमें आप निवेश करें, लंबे वक्त के लिए करें। इन कंपनीज में नॉर्मली घाटा होने का चांस कम होता है, और जो घाटे होते हैं, जो घोटाले होते हैं, वो घोटाले अलग अलग किस्म के होते हैं। यहाँ हम सारे घोटालों का जिक्र करने लगे तो बाकी का कार्यक्रम तो सारा इसी में निकल जाएगा, पर आप कुछ चीज़ों पर नजर रखें। जब आपको कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट मार्केट में दिखाई दे तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। फिलहाल तो मैं आपको यही बता सकता हूँ। And from Delhi, we go over to Bengaluru, from where our next caller is. Welcome to the show, NR Prasad. Please ask your question. Good evening, Market Mantra. This is NR Prasad from Bangalore. Sharad ji, good evening to you. Good evening, Mr. Prasad. You don't need to tell your name. We recognize your good evening itself. Thank you very much. Thank you very much. Two questions, Sharad. Once again, I got a bonus shares. 1:10. I was holding it become 1,000. Again, valuation costing become a problem. I tried to do manually. I couldn't do it. Even the brokerage system also, the old price only it is showing. So how do I go about it? Second question is, actually this seizure of the Jane Street and SEBI, by the SEBI and the Bombay Stock Exchange, 4,840 crore. I just want to know on which sector they were trading and how this would affect the Indian stock market. All right, Mr. Prasad, the valuation of bonus shares is not difficult. You don't need to go into any kind of loop. It's very simple. What you need to do is, suppose you've got 1 share instead of 10 shares. You now have 11 shares. So all you need to do is to spread the price of 11 shares to per share. So valuation of bonus shares is not a problem. If instead of 100 shares today you have 110, so spread the cost of 100 shares to 110. So your per share cost now goes down because of bonus shares. So I think that should be quite simple. Your second question was about a particular FII whose amount was seized. As you write, we normally don't name agencies and we don't name FPIs and FIIs here, but since you have named, so they were not trading in any particular share. The preliminary reports which are available says that they were probably doing something with they were buying in cash, and then they were playing with the options, futures and options. So they were given warning about a year ago that this should not be done because it harms the interest of small investors. Apparently they did not listen. The whole matter is subject to investigation, so I would not like to comment too far deep into it. But yes, no particular script was affected, Mr. Prasad, is all I can tell you as of now. और अब इनके बाद है मुंबई से हमारे श्रोता रत्नाकर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है, ये जो इनकम टैक्स के बारे में मेरा एक केस असेसमेंट ईयर 11-12 का जी रिगार्डिंग रिकॉम्पुटेशन ऑफ कैपिटल इनके बारे में जी इनकम टैक्स में हमने फाइल किया था जी, लेकिन उसका अभी तक उन्होंने सेटलमेंट किया मुझे। अच्छा, क्योंकि वो केस था कैपिटल गेन के बारे में जी, तो उन्होंने वैल्यूएशन भी उसका प्रॉपर्टी का अलग किया था, सेल प्रॉपर्टी था वो, और सेल का अमाउंट और वैल्यूएशन का अमाउंट अलग था। तो उसके लिए हमें कैपिटल गेन भी देना पड़ा था जी। लेकिन वो जो दूसरा पार्टी था हमारे जैसे,
तो उनका केस उन्होंने सेटल किया है जी। अपील के बाद में। जी। तो हमारा अपील अभी भी पेंडिंग है। वो बोलते हैं कि फेसलेस रीडिंग है तो कभी हो जाएगा मालूम नहीं। और उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये जो है कि कंफर्मेशन फ्रॉम लर्न आईटीओ के पास, कल्याण के पास से कंफर्मेशन होने के बाद ही आपका केस सेटल हो जाएगा और ये फेसलेस रीडिंग है। तो उसके बारे में क्या करें? ठीक है रत्नाकर साहब, ऐसा होता है जो आपने कहा है, ये कोई बहुत अनयूजुअल घटना नहीं है। क्योंकि जब आपका वैल्यूएशन का मैटर होता है इनकम टैक्स में तो इसकी अपील CITA के पास जाती है, जिसको हम बोलते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। तो उनके पास जब मैटर जाती है तो क्या होता है कि बहुत सारे पेंडिंग केसेस, अभी आपको याद होगा वित्त मंत्री महोदया ने भी इस बात पे कमेंट की थी कि हमें जो लिटिगेशन में केसेस हैं उनको जल्दी जल्दी क्लियर करना चाहिए। तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। तो कई बार मैंने देखा है कुछ सर्कल्स में CIT अपील्स जो बड़े केसेस हैं उनको पहले लेते हैं और जिनमें छोटी डिस्प्यूट है उसको बाद में लेते हैं। तो हो सकता है जिस सर्कल में आपने फाइल किया हो वहां पर अभी आपसे भी बड़े केसेस पेंडिंग है, इस वजह से वो डिले हो रहा है। पर 2011-12 का है तो वाकई में बहुत लंबा समय इसमें बीत चुका है। और अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन ITO से चाहिए तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप एक अर्ली फिक्सेशन की एप्लीकेशन लगती है अपील्स में, आप अर्ली फिक्सेशन एप्लीकेशन लगाइए। दूसरा, सरकार ने अभी हाल में एक नया डिपार्टमेंट बनाया है जिसको DPG कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो आप वहां पर भी एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि मेरा 2011-12 का केस है, बहुत समय बीत चुका है, वो लग नहीं रहा है। बाकी मैं आपको अर्ली फिक्सेशन एप्लीकेशन, आपके जो वकील हैं, CA हैं, जो भी आप खुद लड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप उनके थ्रू एक लगाइए। मुझे उम्मीद है कि इसको जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। और मैं ये भी सलाह दूंगा कि अपने सर्कल के जो PCIT हैं, जिनको हम प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कहते हैं, उनसे भी आप जाकर मिलें, उनको बताएं कि ये इतना मैटर अब 14 साल पुराना हो चुका है और इसको जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण किया जाना चाहिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 47 पैसे कमजोर होकर 85 रुपये 86 पैसे पर बंद हुआ। अमेरिकी मुद्रा में मजबूती और अमेरिकी व्यापार नीति को लेकर अनिश्चितता के बीच डॉलर इंडेक्स, जो 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, दिन के कारोबार में 97.38 रहा। आज प्रमुख एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स में 0.4% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 0.1% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई और चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में बिना कोई बदलाव के रहा। उधर जापान के निक्केई 225 इंडेक्स में आधे प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई और हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 0.1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। दिन के कारोबार में प्रमुख यूरोपीय इंडेक्स में तेजी देखी गई। जर्मनी का डेक्स 0.8% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। फ्रांस के कैक में 0.2% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई और लंदन के FTSE 100 में 0.1% की बढ़त दर्ज की गई। And we have our next caller from Kolkata. Pankaj, welcome to the show. Please ask your question. जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी हमारा एक प्रश्न है कि मेरी एक बेटी है, मैं उसके शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। तो अभी एक लमसम अमाउंट मैं अगले 10 वर्षों के लिए उसे फिक्स करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब ये फिक्स ऐसा जगह पे हो जो पूरी तरह से सुरक्षित भी हो और थोड़ा बेनिफिट भी थोड़ा ज्यादा मिले। तो मेरे पास में 3 विकल्प में सोच रहा था, जैसे पोस्ट ऑफिस है और मेरा SBI में मेरा अकाउंट है वहाँ, या फिर LIC में। इन तीनों जगह पर मैं कहाँ पे करूँ ताकि थोड़ा सेफ भी हो और थोड़ा पैसा भी बेनिफिट ज्यादा मिले। थैंक यू। चलिए पंकज जी, बहुत नेक विचार है। देखिए, मैं सोचा था कि हमारे यहाँ परिवार हैं वो बेटी के लिए कितनी पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं, उनके लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं। और ये हमारी हिंदुस्तानी परंपरा है कि हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी का अच्छे से अच्छा उसको एजुकेशन मिले और उसकी शादी हो। आपने 3 विकल्प बताए, मैं आपको एक चौथा भी बताता हूँ। तीनों ही विकल्प अच्छे हैं। LIC में मैं पंकज जी मैं पूरा रिकमेंड नहीं करूँगा कि LIC के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का मिक्स होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार रिटर्न जो आपको बाकी जगह से मिल सकता है, शायद उतना अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिल पाता है। तो मैं LIC वाली ऑप्शन को शायद मैं व्यक्तिगत तौर पर पसंद ना करूँ। आपने पोस्ट ऑफिस का कहा, मैं आप चौथा विकल्प जो आपको बताना चाह रहा था वो बताना चाह रहा था कि किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में भी आप बिटिया के लिए पैसा लगा सकते हैं SIP के जरिए, या आप उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ कर लगा सकते हैं। किसी म्यूचुअल फंड में आप ऑनलाइन सर्च करें या किसी आपके आसपास कोई एक्सपर्ट हो, या संडे को
मार्केट मंत्रा पे ही म्यूचुअल फंड पे डेडिकेटेड प्रोग्राम होता है, आप उसमें कॉल कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। तो मैं चौथा विकल्प आपको ये बताना चाह रहा था, उसमें लगाएं, और मैं एक पांचवा विकल्प भी आप कहिए तो आप इस समय मैं आपके लिए दे दूं, क्योंकि बिटिया का मामला है तो हमें बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। सोने की बात हो रही थी अभी पीछे, आपसे पहले एक कॉलर थे जो गोल्ड के काफ़ी फ़ैन है, वो हर बार गोल्ड का पूछते हैं। मैं समझता हूँ कुछ पैसा पंकज जी, अगर गोल्ड, मुझे नहीं पता नहीं आपकी बिटिया की उम्र कितनी है, अभी कितना समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, अगर आप 10 साल का देख रहे हैं तो गोल्ड भी मुझे 15-20% आप अगर सोने में भी लगाएंगे। पर ध्यान रखिएगा, बेटियों के लिए लोग क्या करते हैं, गहने खरीद के रख लेते हैं। गहने मत खरीदिएगा, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस जाते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। आप गोल्ड कॉइन्स ले सकते हैं, या ETF आते हैं, गोल्ड के ETF होते हैं, सॉवरेन बॉन्ड्स अब नहीं आ रहे हैं गोल्ड के ETFs में, या आप गोल्ड बार्स, गोल्ड कॉइन्स खरीद के 20% के आसपास उसमें भी आप रख सकते हैं। जब बिटिया की शादी होगी तो हम वैभव और दिव्या इनको कहेंगे कि हमें बताएंगे, और वो पैसा लगाया था तो कितना बन गया, आप बन के हमें खुशी होगी कि मान लीजिए 1 लाख था, आज 2 लाख हो गया। मार्केट मंत्रा में तो लोग मेरे ख्याल कमाते ही हैं जो लोग सुनते हैं जी। बिल्कुल शरद जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, और ये हमारे सभी लिसनर्स के लिए बहुत सही काम की बात है जो अपनी बेटियों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और हमारे अगले कॉलर हैं दिल्ली से प्रकाश। प्रकाश, आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार जी, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो इनकम टैक्स की जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है 15 सितंबर तक जी, और मैं सीनियर सिटीजन हूँ। सीनियर सिटीजन लोग शायद तभी तक जमा कर सकते हैं जब तक हम रिटर्न भरते हैं जी। मेरे किसी ने कहा कि 31 जुलाई तक जो इनकम टैक्स ड्यू है वो अभी भरना पड़ेगा, तब तक नहीं जब तक लास्ट डेट है। क्या ये सही है? मुझे ये पूछ। नहीं प्रकाश जी, ये जो आप प्रोविजन कह रहे हैं, ये कोविड के टाइम ऐसा था कि सरकार ने कहा था कि आप 31 जुलाई तक जमा कर दीजिए, पर डेट बढ़ गई थी। पर क्योंकि ये डेट सरकार ने स्वतः बढ़ाई है, और ये कुछ पिछले साल जो बजट में चेंजेस हुए थे उसको इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स की यूटिलिटीज होती हैं उनमें इनकॉर्पोरेट करने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग रहा है। तो आप तो वैसे ही प्रकाश जी सीनियर सिटीजन है, आपको तो जल्दी भरने की जरूरत नहीं है। आप 15 सितंबर तक का पूरा टाइम लें, आप तब तक डिपॉजिट कर सकते हैं। आपके ऊपर तो आयकर में एक सेक्शन 234A और B होता है, आपके ऊपर वो लागू नहीं होता, जिसको हम एडवांस टैक्स कहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है। तो आप इत्मीनान से बैठिए, 15 सितंबर तक जमा करिए। अगर आप जल्दी जमा करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता सरकार कभी आपको मना करेगी, आप कर सकते हैं। पर आपके पास 15 सितंबर तक का पूरा टाइम है, आपसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। And we have a next caller from Maharashtra. Mukund is joining us. Mukund, welcome to the show. Please ask your question. ओके, मराठी में बात किया तो चलेगा क्या सर जी? सर हिंदी में करेंगे तो सभी लोग समझ पाएंगे। ओके ओके, यस आई कैन टॉक इंग्लिश एंड मराठी ऑल्सो। ऑल मार्केट मंत्रा टीम को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शरद जी। कोहली को दिल से बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। मेरे 3 सवाल है सर जी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, जी। SC यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, जी। तो 5 साल की होने के बाद 3-3 साल के ऐसे मैं कितने बार रिन्यू कर सकता हूँ? एक हो गया। दूसरी बात है, उसको मैं NRE एज ए नॉमिनी अपॉइंट कर सकता हूँ क्या? क्योंकि ऑन द मैच्योरिटी वो पैसे देने को दिक्कत आती है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल हमारे रिलेटिव में हो गया। और तीसरी थिंग है, मेरी जो पेंशन है उसको मैं ज्वाइंट अकाउंट से मिसेस के नाम से पा सकता हूँ क्या पेंशन उसी अकाउंट में? चलिए मुकुंद जी, आपका पहला सवाल है, आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का कितनी बार रिन्यू करा सकते हैं? आप कितनी भी बार उसको रिन्यू करा सकते हैं, कोई लिमिट इसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरा आपने पूछा क्या कोई NRE, अब NRE से आपका मतलब था कि NRI का था, भारतीय पासपोर्ट होल्डर होने चाहिए, उनका भारत में अगर अकाउंट होगा। आपने बिल्कुल जो सवाल के आपके सवाल में ही जवाब भी छुपा हुआ है। अगर उनका भारत में अकाउंट नहीं है तो फिर दिक्कत होगी कि नॉमिनी को फिर जब पैसा देना होता है तो फिर वो पैसा कैसे दिया जाएगा, ये भी एक समस्या सामने खड़ी हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, या तो आप उनका अकाउंट खुलवा दें यहाँ पर, और अगर वो पासपोर्ट होल्डर भारत के नहीं है तो फिर तो वो NRO अकाउंट तो नहीं खोल पाएंगे। नॉर्मली NRO अकाउंट को प्रेफर किया जाता है नॉमिनी के पैसे देने के लिए। इनका तीसरा एक और सवाल था, पर हम जनरली 2 ही रहते, तीसरा मुझे भूल भी गया है क्या सवाल था, मैंने लिखा नहीं जी। और अगले हमारे श्रोता हैं कोलकाता से अतानु साहा। अतानु, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। सर माय क्वेश्चन इज हाउ डू वी डिफाइन साइड बेस इकोनॉमी and realize it with our current situation? Mr. Tanu, your words are not very clear. What exactly are you trying to ask? No, I think आप अपना
he will have to call again because it's not very clear what exactly he meant by what words. We could not understand the pronunciation. जब तक अतानु हमसे संपर्क करते हैं तब तक हम दूसरी खबर पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश को अपने स्वार्थ के लिए महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं का हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आउटरीच सत्र में उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों और प्रौद्योगिकी में अधिक सहयोग के अलावा आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और लचीला बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि मांग आधारित निर्णय लेने, दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक परियोजनाओं में स्वस्थ क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में लोगों की प्रगति और कल्याण काफी हद तक प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सभी के लिए एआई के मंत्र पर काम करते हुए आज भारत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन सहित क्षेत्रों में व्यापक रूप से और सक्रिय रूप से एआई का उपयोग कर रहा है। Moving on to a very important story, India has said that BRICS leaders' declaration has captured most of the concerns of the global south. Addressing the media after the conclusion of the first day of BRICS summit in Rio de Janeiro, Secretary Economic Relations in the Ministry of External Affairs, Damu Ravi, said that Prime Minister Modi strongly articulated the need for the reform in the multilateral global organizations. Prime Minister expressed that BRICS could play an important role in shaping a multipolar world. In this context, he also gave few suggestions in terms of considering setting up a science and research repository in the BRICS group by the global south countries to focus on supply chains of the critical minerals, both secured and make it resilient, and the BRICS group to work on responsible AI. He reiterated that the global organizations of the 20th century lacked the capacity to deal with the challenges of the 21st century, and therefore he underscored the importance of reforming the multilateral organization. He called for a multipolar and inclusive world order and stated that the global governance institution must undergo urgent reform to reflect the contemporary realities and times. The Prime Minister will reiterate India's deep commitment to environmental action. Later in the day, Leaders' Framework Declaration will be announced on climate finance. Thereafter, the Prime Minister will depart to Brasilia, the capital of Brazil, for a state visit. Indian Ambassador to Brazil, Dinesh Bhatia, has said that 4 MOUs will be signed during the Prime Minister's state visit on the 8th of this month. And moving on to the story on oil, crude oil prices displayed mixed trend today, shrugging off the impact of the OPEC Plus hiking output more than expected for August, as well as concern about the potential impact of US tariffs. Brent crude was trading over 0.5% up at $68.67 per barrel, and WTI crude was trading marginally low by 0.1% at $66.73 per barrel when reports last came in. And moving on to the story about gold and silver in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading over 0.4% down at 96,860 rupees per 10 grams, and silver 999 fine was also trading over 1% down at 1,07,360 rupees per kilogram a short while ago. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.47% बढ़कर 96,533 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं सितंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 1.01% गिरकर 1,07,336 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। And we have our next call in Market Mantra, but due to the time constraint, we won't be able to take his call. Ram Prasad ji, please call in at Market Mantra again on Saturdays, Sundays and Mondays to have great experts like Sharad sir give your answers to the queries. और शरद जी, आप हमारे मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए। और अब चलते हैं एक नज़र आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर से। Before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic equity indices end week's first trading session on a muted note. Sensex rises marginally by 10 points. Nifty closes flat at 25,461. Prime Minister Narendra Modi says at BRICS, no country should weaponize critical minerals, technology and supply chains. And crude oil prices display mixed trend. Brent crude trading at $68.67 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, Namaskar.
Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.